Welcome to the video of Wheatstone Bridge. As you can see in the presentation, in 1843, Charles Wheatstone developed a circuit to measure unknown resistance with reference to standard resistance. Actually, you will come to know how resistance can be determined using already known resistance. You just can go through the presentation by pausing the screen, and after you have gone through, you can refer the video further. Now I'll explain this Wheatstone Bridge circuit. Actually, in Wheatstone Bridge circuit there are four resistances named R1, R2, R3, R4. They are joined in such a way that quadrilateral rhombus is made. Now the common point of R1 and R3 resistance, point A is connected with the battery using a key, and the common point of resistance R2 and R4 is connected to point C, and then negative of the battery through the key. Common point of R1 and R2 resistance, point B, is connected to one another galvanometer, and likewise the common point of R3 and R4, point D, is connected to another terminal of galvanometer. What is galvanometer? That's the main question in this theory. For now, it will suffice that galvanometer is a current measurement device. Galvanometer is a very sensitive device, and it can measure even a small amount of current passing through galvanometer. One more thing about galvanometer, you are to remember at this point of time is galvanometer is a directional device. That is, it can give you the idea of direction in which the current is flowing. Actually, after going through magnetism, you will and construction of the galvanometer, you will be able to learn, you will be able to understand how galvanometer measures the current and gives the direction of the current flowing through the galvanometer. But that's not our cup of tea right now. So it is omitted at this point of time. अभी आप लोगों को इतना sufficient है कि galvanometer एकदम sensitive device है. It can even measure a small amount of current flowing through it, and it can also give you the direction of current, electric current flowing through it. आप लोग ये पूरा समझ लेना. अब ये इस वे से यदि सर्किट कनेक्टेड है, की प्रेस्ड है, तो करंट I बैटरी में से निकलेगा. That will get divided at junction A. So I is equal to I1 plus I2. जंक्शन लॉ यदि लगाना पड़े तो है. अब आप लोग देखोगे कि I1 करंट जो R1 में से फ्लो हो रहा है, वही करंट R2 में से भी फ्लो हो रहा है. ऐसा क्यों? गैल्वेनोमीटर से नहीं फ्लो कर सकता क्या? तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के दो स्टेट्स डिटरमाइन किए होते हैं, दो स्टेट्स जाने जाते हैं. यदि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो हो रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है उसको बैलेंस्ड सर्किट नहीं कहा जाता, उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहा जाता. यदि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो से मैच कर रहा है, ना तो इस तरफ मूव कर रहा है ना तो इस तरफ मूव कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, उसको जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं. और जब जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है तो इस वाली सर्किट को बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है. तो गैल्वेनोमीटर में तो करंट फ्लो करना ही नहीं है. इसका मतलब ये हो गया ना
कि R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको यहाँ जाने का तो चांस है ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट R2 में से पास होकर के C को मिलेगा। वैसे ही जो करंट R3 में फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, वो D से गैल्वेनोमीटर में तो फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज I2 R3 में से फ्लो कर रहा है, वो सेम अमाउंट ऑफ करंट हैज टू पास थ्रू R4। अगेन C पॉइंट पर I1 I2 मिल करके की से लेकर साइक्लिंग करता रहेगा। तो बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज में हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब किरचॉफ्स लूप रूल हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैं सर्किट को ऊपर नीचे करता रहूंगा। पहला लूप रूल जो है वो लगाना है A B D A, और दूसरी एक लूप लेनी है, वो ये वाली लूप लेंगे हम लोग, दिस लूप। तो आगे के पेज में जो लिखा है A B D A लूप लेते हैं बैलेंस्ड कंडीशन में। तो आप लोग देखना, A से B जाओगे तो दिस वुड बी माइनस I1 R1। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, बट एज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, उसका IR प्रोडक्ट नहीं आएगा। और ये वाली ब्रांच में, यहाँ से आने के बाद ये वाली ब्रांच में करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो प्लस I2 R3 होगा, एंड लूप खत्म हो रही है, यानी इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा इक्वेशन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। ये रहा माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये है कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। अब इसी वे से हम लोग ये लूप लेते हैं B C D B। चालू करते हैं B से, तो ये वाली ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है, और मैं ट्रावर्स भी उसी डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस I1 R2। C से D में प्लस I2 R4, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो लूप खत्म हो रही है, इक्वल टू 0। यानी वो आपका इक्वेशन होगा माइनस I1 R2 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0। एंड आई रिपीट, हियर इट इज रिटन माइनस I1 R2 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके उसको भी मैं लिख सकता हूँ I2 R2 इज इक्वल टू I2 R4, giving them numbers, these equation number 1, this equation number 2, and then dividing equation 1 by 2 करोगे तो I1 R1 upon I1 R2 I get cancelled, so R1 by R2, और इस तरफ आपका I2 R3 upon I2 R4 आएगा, I2 gets cancelled, so रह जाएगा, बच जाएगा आपका R3 by R4। so ये सॉल्व करने से मुझे जो इक्वेशन मिलता है वो है R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4। याद रहे, इसी स्टेटमेंट को बैलेंस्ड कंडीशन का, जीरो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन कहा जाता है। फिर से मैं फिगर पर आकर कुछ सुना रहा हूँ आप लोगों को, वो याद रखना है। एक्चुअली जब इसकी एप्लीकेशन आएगी मीटर ब्रिज, उसमें मैं डिटेल में वापस से एक्सप्लेन करूंगा, बट ये जो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, उसको स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस कहते हैं। R3 एंड R4 को मेजरिंग आर्म कहते हैं। उसका मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं एंड सो ऑन है। वो चीज़ आप लोगों को जब मीटर ब्रिज समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बट अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब when there is no current flowing through the galvanometer, this resistance upon this resistance, that is R1 by R2 is equal to R3 by R4। so स्टैंडर्ड आर्म्स में ये स्टैंडर्ड आर्म है, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू मेजरिंग आर्म में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। दैट्स व्हाट यू आर टू रिमेंबर about the meter bridge, sorry, the Western bridge।
And in the next video to come, I will explain you the theoretical bridge application, meter bridge. Till then, take care. Bye bye.